آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ، کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. تو کیونکہ میں نے مغرب میں اور یہ سارے انگلینڈ، سب یورپ، آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے، امریکہ، تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا، جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، ہمیں خود بھی نہیں اندازہ، مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں 3.5 سال پرائم منسٹر نہیں بنا، کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں. کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں. اور تو چھوڑے، جو منرلز ہیں پاکستان میں، مدنیات ہیں، ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، وہی پاکستان کو اٹھا سکتے. ٹورزم پہ کانسنٹریٹ کر، وہاں اٹھ سکتا ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زراعت ہے، اس میں ہم صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں، اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے. انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹو ہے، باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا 1 کروڑ جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں، انٹرپرینرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ہر قسم کا ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا، یہ جو گورنمنٹ آئی گی جی، ابھی وہ سعودی عربیہ نے پیسے دے دیے، اس نے UAE نے پیسے دے دیے، وہ اب سنی جی چائنا پہ، یہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے. ہمارے قرضوں کی کینسر پھیلتی جا رہی ہے. جب تک کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی، ہم اس ملک میں ڈالرز نہیں آتے. ہم نے 2 طرح تو ڈالرز ریکارڈ منگوائے تھے، ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی، ریمیٹنسز ریکارڈ تھی، لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے، اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں، جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں، 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی انویسٹ کر دیں، پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں، کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو پوچھے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی وہ پھنستے ہیں عدالتوں میں، ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، ہماری انویسٹمنٹ بچے گی. میں سارا وقت، کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے پیسے اکٹھے کرتا تھا، شوکت خانم کے لیے، پھر تحریک انصاف کے لیے، تو مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب پلاٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. کون فیکٹری لگائے گا، کون بزنس شروع کرے گا؟ وہ دبئی میں جا کے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں بزنس نہیں کرتے. کیونکہ جب ایک پلاٹ کے اوپر، پلاٹ سے زیادہ سیف چیز کیا ہے، اس کے اوپر ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، عدالتوں کے وہ چکر لگاتے ہیں. کوئی طاقتور آ کے، قبضہ گروپ آ کے، اچھا قبضے گروپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کون سا پراپرٹی ہے، وہ بیچارے خرید کے واپس جاتے ہیں، پیچھے سے قبضہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک سیف انویسٹمنٹ پلاٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، تو کیسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اس ملک میں اتنی آ سکتی ہے؟ کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز کے پاس جس وقت جو ان کے پاس ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، جتنا پاکستان کا قرضہ ہے، اس سارے قرضے سے زیادہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی کے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے یہاں کے ڈالرز، میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی، جو پاکستان آ سکتا ہے. تو میری پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے، فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے، ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. ہماری جو معیشت ہے، میں تو پہلے اس کے معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا، ہم اسٹیبلش نہیں کرتے. جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہماری کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر. یہ نمبر 1 میری چیز ہے.
नंबर 2, इंसान का जो पोटेंशियल है इस मुल्क में वो कभी रिलीज नहीं होगा जब तक कि इंसान को हम प्रोटेक्शन ना दें, जब उसके बुनियादी हुकूक को हम प्रोटेक्ट ना करें। अब आपके सामने ये क्लासिक केस है, शहबाज गिल का ये क्लासिक केस आपके सामने है। एक आदमी को अगवा किया जाता है, उसको पकड़ के सबके, वो तस्वीर है कि आए हैं लोग गाड़ी में, कोई वारंट नहीं दिखाई जाती, वो कोई मफरूर नहीं था, कोई भाग नहीं रहा था, कहीं भी जाके आते उसको वारंट दिखाते, जी ये आपके ऊपर चार्जेस हैं, उसको ले जाते, अगवा करके लेके गया, पता ही नहीं पहले हमें चला वो गया किधर है। उधर उन्होंने उसको तशद्दुद किया, उसके ऊपर नंगा करके उसको मारा और उसकी फिर तकलीफ में उसकी तस्वीरें बनाई नंगा करके। मैं तो ये तो पहले तो ये जरा सुन ले कि ये किस मुहज्जब माशरा जिसके अंदर कानून होता है वहां इसकी इजाजत है। कोई मुझे माशरा बता दे दुनिया में कि वो इजाजत देता है ये करने के लिए। तो पहले तो उसको मारते हैं, उसके बाद पता चलता है जी अच्छा 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद पता चलता है जी उसने वो बहुत बड़ा कोई गद्दारी कर दिया मुल्क के साथ। अच्छा मैं अब ये अपना कहूं कि मुझे पता ही नहीं था शुरू में क्या हुआ, मुझे उसकी सिर्फ एक मैसेज आई कि कॉल आई कि जी मैंने कोई टीवी का इंटरव्यू दिया, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा क्या कर जी, मैंने कोई कहा था कि कोई अनलॉफुल कमांड ना सुनो, बस ये मेरी आखिरी बात हुई उससे। मैंने कहा अच्छा अनलॉफुल वो तो सब कहते रहते हैं। बाद में पता चला उसने वो जो ऐड कर दिया जी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उसके बाद में पता चला कि असल में तो ये वो अजहर खान का केस था, उसके अंदर अदालत ही वही बातें कर रही है। यानी वो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि उसको इस तरह पहले अगवा करो फिर मारो, उससे फिर पता नहीं क्या। और उसको जो हाल था, मुझे तो बाद में वकीलों ने बताया कि उसका वो मेंटली टोटल शैटर कर दिया उन्होंने उसको। तो क्या किया होगा कि उसको बिल्कुल ही मेंटली उस एक आदमी को, अच्छा वो चले या तो हो ना वो कोई इस तरह का जो जेल से अंदर बाहर जाता हो, वो तो तकड़े होते हैं लोग, वो प्रोफेसर वहां का, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर वो लेक्चर दे रहा है, उसको ये जब ट्रीटमेंट की गई तो उसका ऊपर जो ज़हनी तौर पे गुजरा होगा, मैं भी हैरान के सोचे उसकी फैमिली होगी, उसकी वाइफ होगी, वो क्या सोच, उसकी तस्वीरें देख रही हैं, वो क्या सोचती होंगी, उसके रिश्तेदार, उसके भाई, उसके फादर इन लॉ मेरे पास आए, वो सारे उसको देख के एक आदमी को इस तरह तो ब्रेक करना, और जो कर रहे थे उनको कोई खौफ नहीं था कानून से, उनको कोई फिक्र नहीं थी कि उनका कोई इत्तेसाब होगा, कोई कानून उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, कोई फिक्र नहीं थी उनको। जुल्म करते हैं, पुलिस से पूछते हैं, बाद में पुलिस कहते जी हमने तो नहीं कुछ किया। तो फिर किसने किया, कौन था इसके पीछे? जो भी पीछे था वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, वो समझता था कि पाकिस्तान का कानून मेरे ऊपर नहीं लागू होता। और ये है अलमिया हमारा। और फिर वो खातून मैजिस्ट्रेट, वो बड़ा जी इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया मुझे, कि वो ने उसको कह दिया है कि जब खातून मैजिस्ट्रेट के पास आया, जब उसको पता था तशद्दुद है, आज साबित हुआ है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, अदालत में उसकी रिपोर्ट दी गई है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसने फिर उसको पुलिस के पास रिमांड पे भेज दिया। यानी कोई चेक करना चाहिए। और क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि एक आदमी देख रहे हैं तस्वीरें उसकी, देख रहे हैं वो पब्लिक में बिल्कुल मेंटली ब्रेक हुआ है, उसको फिर पकड़ के वापस भेज दिया उसी पुलिस के पास, और चेक भी नहीं किया कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ यानी। और फिर ये जो आईजी और डीआईजी है, कौन जिम्मेदार है कि एक आदमी को आपने गैर कानूनी तौर पर उठा के तशद्दुद किया, किधर ये इजाजत देता है? और उसके ऊपर अच्छा मैं कह रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो कहते जी दहशतगर्द है। सोच ले कि अच्छा पहले वो गलत काम कर रहे हैं, उनके गलत काम करने के लिए हम कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे, और वो ऊपर से दहशतगर्दी का पर्चा करवा देते हैं मेरे ऊपर, और जनाब वारंट निकाल देते हैं। ये सारी चीजें क्या शो करता है कि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी है।
जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमजोर है उसकी हिफाजत नहीं करता कानून। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मुल्क में जद्दोजहद करें। ये पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग है। ये जो आप इंसाफ की जो तहरीक है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए, ये मुल्क का फ्यूचर है। या एक तरफ या मुल्क इधर जाएगा और या दूसरी तरफ तबाही की तरफ जाएगा। अगर इसी तरह इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी ना हुई, मैं आपको कहता हूं कि कोई तरीका ही नहीं है कि हम ये माशी तबाही से बच सकते हैं। कोई किसी के पास आंसर नहीं है। वो बड़ा सुना था जी, बहुत बड़ा जीनियस था शहबाज शरीफ। लोगों ने रियलाइज नहीं किया कि इश्तिहारों के अंदर ही वो जीनियस था। सारी तरक्की इश्तिहारों में थी। जब से वो आया, मुझे ये बता दे कि इनके पास कौन सा रोड मैप है। ये जो हम कर्जे लेते जा रहे हैं, ग्रोथ रेट कम होती जा रही है, इंडस्ट्री सुकड़ती जा रही है, किसानों के पास इतनी ज्यादा महंगाई कर दी है, बिजली की दुगनी कीमत कर दी है बिजली की। किसानों के पास ट्यूबवेल चलाने के पैसे बिल आ रहे हैं। आम बेचारा मिडिल क्लास सफेद पोश, बुरे हालात हैं लोगों के। तो इकॉनमी सुकड़ रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास किधर से वेल्थ क्रिएशन होगी कि हम ये कर्जे वापस करें? किधर से दौलत में इजाफा होगा? कि अगर आपकी इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बाहर से जो दौलत रेमिटेंसेस आनी थी उनकी वो ड्रॉप हो गई हैं, तो किधर से पाकिस्तान के पास पैसा आएगा? ये कर्जे ये जो ले रहे हैं और कर्जे, कोई हमारे पास रास्ता नहीं कि अगर हमने इस मुल्क को माशी तौर पे ठीक करना है तो ये एक बड़ी, ये सारी ओवरऑल पिक्चर के अंदर जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी आनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में। और फिर नई डेमोक्रेसी आ सकती है। डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ साथ साथ चलते हैं। आप अगर इलेक्शन करवा दें एक मुल्क के अंदर जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जमहूरियत आ ही नहीं सकती। जो ताकतवर है, जो जिसके पास पैसा है, जिसके पास 2 नंबर पैसा, वो ऊपर आ जाएगा। कैसे मुकाबला करेगा एक आदमी, पढ़े लिखे लोग कैसे मुकाबला करेंगे उसका जिसके पास मसल भी है, उसके पास जो सिंध के अंदर, आज मुझे बताएं सिंध के अंदर कौन सी जमहूरियत है? जो उनके ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है, 15% लोकल गवर्नमेंट में लोग खड़े ही नहीं हुए क्योंकि उनके ऊपर केसेस करके FIR करके उनको अनअपोज जता दिया 15% को। बाकियों के पास जो इलेक्शन लड़ने जाता है वहां उसके ऊपर FIR काट जाती है। मेरे ऊपर 16 FIR काट दी है। वो तो छोड़े, अब दहशतगर्दी का केस कर दिया। तो बेचारे आम लोगों का क्या होता होगा? मुझे ये बताए कि मेरे पास तो फिर भी मैं एक, चले वो अल्लाह ने करना था कि कल कौम सारी सड़कों पे आ गई रात को 2 बजे 3 बजे, नहीं तो मैं लेकिन मैं यही सोच रहा था कि मैं अगर आम एक शहरी पाकिस्तानी होता, मैं शहबाज गिल होता, तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। और किससे नहीं, बस एक मिनट बस करो, सुन लो। मैं सिर्फ आपको ये मेरा मकसद आपको समझाने का है कि एक आम आदमी पाकिस्तान में जिस दिन हमारा कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा, कि पहले तो डरेंगे लोग इस तरह का पर्चा करने के लिए। जो ऐसा पर्चा करेगा दहशतगर्दी का, उसके ऊपर सवाल पहले अदालत पूछेगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे पड़ी, क्यों नहीं इस तरह होता। मैं बरतानिया में कितने 20-30 साल देखा, क्यों किसी के ऊपर इस तरह नहीं होता? क्योंकि वहां की अदालतें तकड़ी हैं। वो ताकतवर के बोझ लेती हैं, खड़ी हो जाती है इंसाफ के लिए। जुर्रत नहीं होती गवर्नमेंट की इस तरह की चीजें करनी। वहां
कोई भी ताकतवर वहां, कोई इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं होती कि लोगों के हकूक के ऊपर इस तरह उनको असाइड करके, उनको सेट असाइड करके उनके ऊपर करे जो शहबाज गिल से हुआ है। और कितने शहबाज गिल हैं पाकिस्तान में जिनकी ताकत है, उनसे आप ये करें, और जो थोड़ा सा ताकतवर फजल रहमान टाइप कहे कि मैं 10,000 लोग ही लाऊंगा, उसको आप हाथ ही ना लगाएं, वो जो मर्जी कहते। मेरा पॉइंट ये है कि जमहूरियत तब आती है जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड रूल ऑफ लॉ आता है उस मुल्क की अदालतों से। जब अदालतें इन्फोर्स करती है रूल ऑफ लॉ, वो इलेक्शंस में हकीकी जमहूरियत आती है। अगर आपका रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप इलेक्शंस करवाएंगे, तो इस तरह के क्रिमिनल्स असेंबली में आते हैं। मेरे दोस्त एतजाज, मेरे हमसाया एतजाज हसन एक और बात की कि मुझे मुफाहमत करनी चाहिए। आसिफ ज़रदारी का उन्होंने नाम लिया। मैं अब इसका जवाब सिर्फ इस तरह देना चाहता हूं कि देखिए, आप सीरत नबी पढ़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ें, कोई दुनिया की तारीख में उनसे अजीम इंसान नहीं आया, ना आ सकता। लेकिन उनसे ये भी याद रखें, उनसे ज्यादा रहमदिल इंसान कोई नहीं था। रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। लेकिन अच्छा, फतह मक्का के बाद सबको माफ कर दिया, वो लोग जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म किया था। लेकिन जब उनको कोई कहा कि जनाब कुरैश की एक लड़की ने चोरी की है, तो इसको आप जरा नजरसानी करें, तो उन्होंने तब कहा, दो चीजें कही। मैं ये चाहता हूं कि ये जब मुझे बार बार कहते हैं जी इनसे आप में तकब्बर बड़ा है, आप इनसे मुफाहमत कर लें, आप अंडरस्टैंडिंग कर लें। मैं हमेशा ये आप बताता हूं कि जो रहमतुल लिल आलमीन थे, उन्होंने हर चीज पे नजरिए के ऊपर, काफिर के खिलाफ नजरिया फर्क था उनका, उनके ऊपर जुल्म हुए थे, उन्होंने वो भी माफ कर दिए। लेकिन जब उनको कहा कि करप्शन या चोरी के ऊपर कुरैश की लड़की को माफ करो, तो उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई। जब बड़ा चोरी करता था उसको छोड़ देते थे, छोटे चोर को पकड़ते थे। देखिए, और कहा कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब एक माशरे के अंदर आप चोरी को, करप्शन को एक्सेप्टेबल बना देते हैं, आप माशरा खत्म कर देते हैं। माशरे की बुनियाद रखी जाती है कुरान की आयत में, अमर बिल मारूफ। तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो।